Uh, like you get goosebumps. I feel someone is behind me. How does it look like? Very chaotic. I'm again and again getting goosebumps. It's very chaotic. It's like someone is screaming and red and black. Some figures are forming, something burning. Keep watching. You're safe and protected. Nothing to worry. Keep watching. Concentrate on all your three senses. I'm again God, and again getting goosebumps. it's okay, Some no? something is burning like on the that chita jab jalti hai like that. Okay. What comes to your mind? Where is it burning? Some Who is the? open place. Some girl is burning. Okay. Keep watching to know how does it connected to you. What comes to your mind? I don't know. People are watching. She's screaming. She's burning. Is she burning alive? I think so. Can you see the picture in clearly? No. Allow yourself. Watch it from the distance. No need to take any emotions, feelings. Just witness from the distance. 3, 2, 1. What do you feel? I feel like crying. Why do you feel like crying? What is that making you to cry? I don't know. It's automatic. You don't have to control your emotions. Whatever you feel like, you can do it. Let your emotions come out. Release all those suppressed emotions. Release them. Keep releasing. Keep releasing. How does you connected to that incident? What comes to your mind when you think about that incident? Do you have any connection? I'm also there, but I don't know. It's just a snapshot. Okay. When you think about the place and era, what comes to your mind? When and where it could have happened? It is India. It is a village, and it is some time back. Not. It's like village people only, Okay. wealthy village people. How does she burning? Is it by forcefully someone burning her? She's burning alone as if someone set her on fire. Okay, what could be the reason? What comes to your mind when you think about the reason? I don't know. No one is even stopping. Concentrate on your feelings. What do you feel? If it was in your control, what could have you done? Could have thrown water on her. What made you not to do that? I don't know. Maybe I don't want to save.
What could be the reason? No need to judge anything. Whatever comes, let it come. I don't know, but I know her. Okay. Keep watching to know what happened later. I'm in my room. I'm again in my room. Okay. I'm here. I feel Up. pain in my leg, right leg, near Okay. ankle, outside, outer side, near that bone. Okay. Keep concentrating. Allow yourself to know after witnessing that incident. Are you storing anything, any emotions or feelings anywhere in your mind or body because of that incident? Are you holding on anything? I feel three things. There's a pain on my right ankle. His chest is cold, and there is someone on my bed. Okay. Keep concentrating to know what is there, who is that on your bed, Someone is sitting there on my left side. male or female. Female. Talk to her. Can you recognize her? No. Is there any connection with that incident that you saw earlier? Maybe. Does she belong to that incident? Maybe. Okay. Would you like to convey anything to her? Maybe she wants to convey. Ask her, listen to her, listen to her, talk to her, ask her what does she would like to tell you. What are you aware of now? She was expecting me to save her, Okay, but now I can see all anger, lot of anger. okay. Why she is expecting from you? What was the relationship that you and she had in that life? I don't know, it was more personalized and I can't establish a relationship. Ask her, is she ready to go to the light? No, Why? Ask her why does she don't like to go? because there is more grudge remaining. Um, Now concentrate on the pain on your ankle.
Do you still have that pain? Yes, it came while going into the tunnel. Okay. It got twisted and like this. Okay. Now once again ask the divine light to rectify all your issues, your health, your mental stress. Ask the divine light to heal your mind and body once again completely. Let this light spread all over your body. 5, 4, 3, 2, 1. Now, as this light is healing your mind and body, feel and visualize all those unwanted pains, emotions, feelings, all are going out of your mind and body in the form of a smoke. 5, 4. Can you see or feel the smoke? Yes, Which color it is? blackish gray, From which part it is going out? backbone. Okay, keep releasing wherever you have stored. Keep releasing. 3, 2, 1. Did you release it completely? Yes, Now fill all the gaps after releasing these unwanted emotions, feelings, and thoughts. Now fill all those gaps with positive energy, divine energy from the divine light. Keep filling those gaps. Fill all those positive energies into your mind and body without any gaps. 3, 2, 1. Slowly look all around. Where are you now? same bench. It is a city square kind of place, but no one is there. It's a stormy weather, Okay. How is the weather there? grayish clouds, as if there is going to be some storm. Okay. Now look at your feet and up to your face. How is your appearance? What are you wearing? Some shirt I'm wearing, whitish color, How old are you there? maybe late 20s or 20s mid, When you look at your appearance, which country do you belong? somewhere in the west. I don't know. Okay. Look all around once again. Is there anybody else? No, Now go to your home to a dinner time in that life. As I count from 3 to 1, you will be in your home having dinner with your family. 3, 2, 1. Look all around. Where are you and what is happening there? it's a deserted place. No one is here, and it got melted away. The places.
melting away in the form of like Okay. dust. It's everything is becoming dust ashes. Home, the place, the garden. What does it mean? Storm is coming. Watch it from the distance, float above that scene and watch it from the distance. You don't have to take any emotions, feelings. What is happening now? I'm stuck. What is stuck? I am stuck. I cannot move. I don't know. I'm stuck. I cannot see further. Okay. Now concentrate on your thoughts. What could have happened there? What comes to your mind? Storm came. After the storm, what could have happened? There is nothing left. Hmm. It is as it is. It's all deserted. What emotion do you have there? Blank. Are those emotions, feelings carried to this life? I feel that sort of coldness on my right hand. Okay. Keep concentrating to know more. Where have you stored all those emotions, feelings? Here. Would you like to release it? Yes. Now I will count from 5 to 1. Keep releasing it in the form of a smoke. Feel and visualize. 5. Keep releasing without holding on to any kind of demands. 4. Keep releasing. Keep releasing. Keep releasing. 3. Release it completely. 2. 1. Did you release it completely? Yes. Now again fill that gap with divine energy, health, peace, confidence, strength. Ask that divine light to fill all these gaps with confidence, health, peace, belief, courage. 5. Keep filling. 4. 3. 2. 1. Now come back to the garden. Where are you now? I'm at a different place and it's a blossoming morning and I'm still there a square kind of roads, but this time it is three roads Okay. in a T shape.
I'm looking at one corner. Keep watching and also look at your appearance. Do you look the same or different? I cannot see myself. What is relevant there? It's more, it has some light, some more lively than the previous one. Okay. Go to a significant event. Go to a significant event of that life. Can't see anything. What are you saying? Can't see anything. Okay. Now I will count from 1 to 5. Slowly come back to your awareness. 1, 2, 3. Feel your surroundings. 4. Feel your body. Rub your hands. Place it on your eyes. Slowly. 5. वो पीछे वो कॉर्नर में वो बैट का है क्या? That is guitar. Okay. In the darkness, when you said left side, I started seeing that corner. Mm, I could actually see back side of myself Okay. in the trance. Mm-hmm. In the dark, that was looking like some shape. No, I could see someone is sitting here, exactly here. Okay. मतलब वो ऐसा टेका लेके. Mm-hmm. But watching towards this side, हाँ, watching facing. this side. Okay. Facing your back. Yes, and when we were trying to go into that trance, right? So Mm. I felt some someone walks with slipper, right? So Mm-hmm. make some kind of sound. So I could feel here, and Mm. then when we were in that meditation, I could feel the book from here, as if Mm-hmm. something got exploded. Maybe she trying to disturb or distract. And in the afternoon, I did meditation. I did feel that burning smell. Mm-hmm. I could not recognize it because I have that diya. So diya ka smell I remember, it is different. Wood Mm. ka smell also I remember, but this I cannot could not differentiate. Mm. Different smell. हाँ मतलब I couldn't identify मतलब what was burning. Mm. मतलब it was unfamiliar burning. मतलब I know how food burns. We have some means basic burning sensations, right? That sense. Mm. But this was different, unidentified. Okay. And from 3 days, I'm feeling this very strongly. I mean, I used to feel that I sleep here, right? So Mm. in January, I connected to some astrologer.
So they felt the same. So I asked them to remove this, the main room. So when I was sleeping here, so someone was trying to grab me as if it was flying. It was trying to grab me, and it was all skull like some old woman, and hair were like this. And I was in deep sleep at that time. That feeling I got. At that time, I used to switch on the light and then sleep. Yesterday also I did the same. Hmm. So something has returned. I don't know. I mean, it was in January. Matlab, if it is here, it should have been here. Hmm. This I don't understand why. मतलब कि अचानक से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना, that thing I don't understand. समटाइम्स क्या होता है ना, ये एक एंटिटी कनेक्शन में आया तो कभी दूसरा दूसरा एंटिटी भी आसानी से उनको कनेक्ट हो जाता है. Maybe. Maybe sometimes they will experience other entities also, but they might not be harming them. But whoever is there for anger issue or grudge, they will be there to trouble, and otherwise like possessiveness. मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलना, ऐसा भी So, act, कुछ भी हो सकता so this possessiveness ना now I'm connecting कि मैं जब बैंगलोर में आया था तो I came in 2014. तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जिस भी ऑफिस में था, उस मैं जिस टीम में रहता हूँ ना, उस टीम में मैक्स टू मैक्स एक या दो लड़की रहती है. मतलब समथिंग हैज़ हैपेंड. मतलब कि एट दैट टाइम आई डिड नॉट हैव दिस स्पिरिचुअल वोकैब्युलरी. तो मैं वर्ड्स भी नहीं दे पाता था. आई थॉट दिस इज़ ठीक है, लक खराब है. बट नाउ आई कैन सी दैट कि मेरे सर्कल के अराउंड में भी जो एक सर्कल होता है ना, उसमें भी कोई लड़की एंटर करती नहीं है, कोई भी ग्रुप हो. मैंने बहुत नोटिस किया है. कहीं पे भी ग्रुप में जा रहे हैं, कहीं पे खेलना है, तो मेरे ग्रुप को छोड़ के कहीं पे मैं इंटर्नशिप करने गया था 2013 में, नागपुर में था. तो लड़कियाँ रहती नहीं है मेरे ग्रुप में. कॉलेज में भी लड़कियाँ रहती ही नहीं है. कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है. Somehow it becomes like that. है. Some unknown energies play, or maybe your karmic plan, कुछ भी हो सकता है. आई थिंक सो इट इज़ कार्मिक ओनली बिकॉज़ ये जन्म का रहता तो आना-जाना इतना नहीं ट्रबल होता. मतलब इट्स बीन 2013 ना. 2013 के पहले भी क्लास व्हेन आई वाज़ इन बैचलर 9th-10th में, तो 9th-10th इज़ 2009 और 10. Almost 15 years, right? So it's a very long time. और जो वो बर्निंग का सीन देखा ना, वो शी वाज बर्निंग अलाइव, यू फेल्ट लाइक क्राइंग देयर. I was crying. I mean, ओके. here also I was crying. देयर आल्सो यू आर क्राइंग, और यू आर फीलिंग लाइक. There I don't know because there it was just a snapshot. I mean I could not see left, right, feet. कुछ नहीं ऐसा, वो बस एक स्नैपशॉट था वहाँ पे. क्या उसको बांधा गया था, कैसे था? आई थिंक नॉट. आई डोंट रिमेम्बर इट. बट वो ऐसा कुछ तो भी, ऐसा हाथ ऐसे लेके कि सेव मी ऐसे बोलते ना, बचाओ, तो ऐसा व्हेन वी स्क्रीम इस टाइप से, बस इतना, बस एक स्नैपशॉट था वो. जबरदस्ती चलाया कैसे? आई डोंट थिंक सो. मतलब ऑब्वियसली, मतलब वो जिंदा है तो जबरदस्ती चलाया होगा. बट आई डोंट नो क्या सिस्टम था. मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आगे पीछे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ. मैं कुछ कोरिलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैं इससे कैसे रिलेटेड हूँ. बट आई कुड फील कि वो क्लोज है, कोई तो भी क्लोज है. एंड शी इज एक्सपेक्टिंग यू टू सेव. यस. वो भी एक वजह हो सकता है. तुम खुद भी प्लान बनाने के लिए इस लाइफ के लिए, मे बी दैट लाइफ यू मिस्ड योर लव, सपोज इफ इट इज योर लव, यू हम्म. मिस्ड इट सो लाइक विदाउट एनी एफर्ट्स. हम्म. तो कार्मिक प्लान एक भी हो सकता है कि मुझे आसानी से मिला था तो मैं उसको उतना वैल्यू नहीं दिया, बचाया नहीं उसको. इस बार मुश्किल से मिला तो मुझे पता चलेगा कि प्यार का या लड़की का वैल्यू क्या होता है. सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. हाँ, वो भी हो सकता है. और ऑन दैट शी वाज आल्सो अटैच्ड टू, मे बी टू टीच यू.
I could feel a lot of anger. I mean, जब फर्स्ट टाइम वी कनेक्टेड ना, तो ऐसा होता है ना जैसे फ़ोन पे कोई बहुत स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब वो हम्म, कान फट जाते हैं। मुझे वैसा फ़ील हो रहा था। मुझे ओवरऑल ये सुन के ऐसा लग रहा है कि उसको तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, लेकिन तुम्हें हार्म करने का इंटेंशन कम है। हाँ, मेरे को भी सेम लगता है क्योंकि हार्म करना रहता ना तो ये बहुत टाइम से अभी तक ये हार्म हो चुका रहता। बहुत कुछ होता। इसने हार्म नहीं किया, इसका बस ये है कि रिलेशनशिप लड़की आनी नहीं चाहिए लाइफ में। उसका शायद ये हो सकता है कि ये मुझे नहीं बचाया, वो एक एंगर इशू है। और ये मुझे नहीं मिला, तो ठीक है, इसको भी कोई नहीं मिलना, मैं देख लूंगी वो, ऐसा करके। बट ये तो बहुत दोनों। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैंने भी वो साइकिक सर्जरी के थ्रू ट्राई किया था, तो इन इन दैट आई विजुअलाइज़ कि मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, तो मैं तो वेपर हूँ, तो मैं पूरा ऐसा डिफ्यूज़ हो जा रहा हूँ, बट वो ब्लैक बहुत ही हेवी है एंड वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है, मतलब आई डोंट नो क्या सिस्टम है। तो देखो, तुम इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे, बहुत कुछ तुम भी ट्राई किया हो, हुँ। लेकिन इस टाइम वो क्यों आसानी से गई? आई डोंट नो, शायद वो वापस आ गई, क्या है सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आया। मेरे को एक एक वो मंथ याद है, फ़रवरी, समथिंग रिलेटेड टू दिस इज़ फ़रवरी। आई डोंट नो क्या है। नेक्स्ट मतलब 2026। वैलेंटाइंस डे। मैंने वैसा नहीं सोचा, बट आई डोंट नो, समथिंग फ़ेब है। 4 मंथ्स मैंने गिने हैं, अभी जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 4 मंथ में फ़ेब आता है। समथिंग इज़ हुँ। हाउ डिड शी कन्विंस सो इजीली? आई डोंट नो, आई जस्ट सॉ, मतलब वो ऐसे लाइट में जा रहे हैं, वो कुछ स्वॉर्ड था ऐसा, तो ऐसे जा रहे हैं लाइट में, बट आई डोंट नो। Because Archangel Michael has that power. He controls negative energies. And he was there in my other sessions also. And one client, she also saw him in my this room, and she told me Archangel Michael is there with you. Then asked him why he is there. Is there any reason, purpose? So he said, I like the way you help people, so I want to help you to release these kind of attachments. सो मुझे तब से पता चला, जो भी क्लाइंट्स आता है मैं जो कम्युनिकेट करवाता हूँ उसको बोलने को बोला, तो कुछ लोग आसानी से चले जाते हैं। तो तब मुझे पता चला ये मैं नहीं, आर्केंजल माइकल कर रहे हैं। ही वाज जस्ट हेल्पिंग। बट पता है मेरे को अभी ना और फ़ील हो रहा है कि देयर आर सम मोर, और भी है लोग। चेक करेंगे फिर कभी। गॉड्स कनेक्टेड है, पास से ही इस लाइफ में मुझे ऐसा अभी फ़ील हो रहा है, इस लाइफ की प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब इस लाइफ में बहुत सही है मेरा लाइफ, अगर ऐसा देखा जाए तो नॉर्मल सिनेरियो में। बट सारे जो कॉर्ड्स हैं ना वो पुराने ही कनेक्टेड है। हर लोग का वही है ना, पुराना ही तो कर्म हम लेके आते हैं इधर। तो अब तो मुझे पता है ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब इस लाइफ में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब हम्म, सही है, जॉब वॉब सही है, मतलब लाइफ सही है। वैसे अगर देखा जाए इन अ नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है वो हम्म, फीमेल पार्टनरशिप नहीं है, वो अलग है। बट हम्म, उसके भी तो वो भी तो रीज़न है कि वो पास से ही कनेक्टेड है। हम्म। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। Yes, everything is from past life influence only. We all are here and based on our past actions only. कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ रिवील करना, लेसन, ये सभी लेके आते हैं ना। देखेंगे अगर और भी भाई तो उसको भी बेचने को भी देखेंगे। ये भी हो सकता है वो जाने के बाद ये भी लोग शायद जा भी सकते हैं। When the main entity is gone, there might be a chances of these other entities, if they are because of that person, if they are there with you, they might also go. तो वन मोर थिंग, सो व्हेन वी वर गोइंग इन दैट ट्रांस, राइट? तो मैं वहाँ पे जाके मैं वापस यही रूम में आ गया। आई मीन क्यों? इट वाज़ वेरी वियर्ड। तो एंड देखो, व्हाइल मेरा सजेशन ये था वो रूट को जाने का। हुँ। तो रूट इधर ही है ना। तो बट यहाँ पे अब तो मुझे नॉर्मल फ़ील हो रहा है। बट उस टाइम पे बहुत मतलब सेंसेस बहुत हाई थे मेरे।
मतलब आई कुड गूज़बम्प्स भी था। फील। हाँ। Because see, we cannot judge even one of my client when I asked him when he was seeing that garden से जा रहा था वो भी, मैं बोला जाओ उस रूट को जाओगे तुम जाओ, तो वो गया तो वो बोल रहा है सर मैं मेरा बचपन का घर आ गया, इस लाइफ का बचपन का घर, हुँ। मैं पास्ट लाइफ में कोई घर जाना ना, इधर क्यों आया मैं? तो मैं बोला अंदर जाके देखो देखेंगे क्या है। वो अंदर जाते ही डर गया, उसका गुजरा हुआ मौसी बैठी है उधर। हुँ। बाद में उसको वो बोली हमारा कुछ एंसेस्ट्रल इश्यू है, हमको ढूंढना पड़ेगा, चलो ढूंढेंगे, तू आता है करके मैं वेट कर रहा था। ओह! बाद में वो दोनों ढूंढे जाके, उसका रूट काज भी पता चला, हील भी हुआ। ऐसा वी कैनॉट जज मैं इधर क्यों आया। आई मीन एग्ज़ैक्टली एट द सेम लोकेशन, सेम पॉइंट। मतलब मैं ही वापस घूम के मैं ही हो गया हूँ। मैं जब तुम बोला तो मुझे समझ में आ गया, क्या? वो एंटिटी का ही कुछ है। यू उसका सेड बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। व्हेन यू सेड आई एम बैक टू दिस रूम ओनली, हुँ। आई थॉट दैट इज द रूट, maybe she is only the root cause of this sensation, and that what is the question I asked you? Relationship issues. हुँ। रिलेशनशिप इश्यूज का रूट के लिए ही ये था। मैं कन्विंस हूँ। मतलब मैं तो बहुत मतलब इतने रियल लाइफ़ में भी इंडिकेटर्स हैं, नंबर्स भी मैच होते हैं, पैटर्न भी मैच होता है एंड अब तो फ़ील भी हो गया है। और फीमेल भी थी। फीमेल भी थी, सब सब मतलब पूरा वो बैठ गया डायग्राम, पज़ल। नहीं तो पॉसिबिलिटीज तो अनलिमिटेड है ना स्टोरी आने का माइंड में, तो क्यों ये इसी फिट होता है। हाँ, एंड इवन ऑल्सो कि ना तो वो छोटी थी, ना वो बहुत बूढ़ी थी। हम्म, मतलब वो ऑलमोस्ट मतलब जो मिड एज टाइप जो रहता है उस टाइम। शायद वो लाइफ में तुम्हें बहुत प्यार किए वो। हो सकता है और मे कोई भी तू भी पॉसिबिलिटी। किया है लेकिन उस टाइम बचा नहीं पाया। मतलब कह नहीं सकते, मैं नहीं मार रहा हूँ, क्या पता। नहीं अगर ऐसा होता तो वो छोड़ती नहीं थी ऐसा, बी विदाउट हार्मिंग यू। हुँ। मे बी देयर वाज सम आउट ऑफ योर कंट्रोल, समथिंग माइट हैव हैपेंड, एंड शी आल्सो नोस दैट इट्स नॉट योर मिस्टेक, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल कुछ हो गया, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा भी था। एट द सेम टाइम यू डिडंट पुट मच एफर्ट्स टू सेव हर। मुझे ऐसा फ़ील हो उसको सब सब अवेयर है। मतलब कि आई हम्म, डोंट नो ऐसा रहता है कि नहीं कि एंटिटी को शायद कभी-कभी अवेयरनेस नहीं रहती कि वो मर चुके हैं। है ना? कि वो हाँ वो भी कुछ लोगों को रहता है। इसको सब पता है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये इसको पूरा मतलब एकदम कॉन्शियस डिसीज़न है इसका, सब सारे डिसीज़न। मतलब इसको भी पता है कि नेक्स्ट बर्थ हो जाएगा तो लाइफ़ आ जाएगी। ऐसा हम्म, फ़ील हुआ। आई डोंट नो हाउ, बट इसके सारे डिसीज़न कॉन्शियस है। कुछ लोग बोलते हैं जब सोल बाहर आता बॉडी से, इनिशियली इट वोंट एक्सेप्ट इट हुँ। दैट मेरा डेथ हो गया है, इट विल फील लाइक मे बी इट्स इन अ ड्रीम नाउ, एंड कुछ देर में मैं उठूंगा ड्रीम से तो फिर से मेरा नॉर्मल हो जाएगा करके वो, you, they won't accept initially, and some souls they don't feel for longer time that they don't have body due to some attachments, maybe relationships या money हो possession हो, कुछ ना कुछ ज्यादा अटैचमेंट है तो वो लोग भी इधर ही रह जाते हैं, दे डोंट गो टू द लाइट। ठीक है। अच्छा था सेशन। ये अच्छा था। आई मीन एक्चुअली ये पता है पूरा वो मैच हो गया। मतलब मैं आज घर पे रुका ना, तो मैं एक्चुअली मैं घर पे ही आ पाया। तो एक्चुअली पूरा मतलब मैथ्स आज का सही बैठ गया। एक्चुअली जो लोग ज्यादा ट्रबल करने के लिए ऐसे अटैच होते हैं ना, दे इवन डिस्टर्ब टू मीट एनी थेरेपिस्ट आल्सो। हाँ, पता है थेरेपिस्ट का भी आपने बहुत सही पॉइंट बोला। इसमें क्या हुआ कि मैंने पहले भी इसके लिए वो किया था, 10 जगह पे कॉल भी किया था। एक लेडी से मैं बात किया, ठीक है?
तो मैं पहले पूछा ये क्या है, कैसे ये सब है, राइट? तो पहले उन्होंने कुछ तो भी जैसे हीलिंग कर रहे हैं ना, तो हीलिंग के लिए उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे करते हैं, मतलब 15 मिनट बहुत अच्छे से बात हुई, मेरी क्वेरीज़ थी बिकॉज़ कुछ भी जानने के लिए फर्स्ट यू हैव टू नो कि क्या मैं ये वाला ही सही है कि नहीं, कि इसके लिए कोई और मोडालिटी करना है। अच्छे से हम्म, बात किया, 15 मिनट के बाद में उसका दिमाग पता नहीं क्या होने लग गया उसको कि मेरे को काम है। मैंने बोला ठीक है। मैंने उससे पहले पूछा था आपके पास 10 मिनट टाइम है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? उसने खुद ने बोला हाँ। हम्म। 15-20 मिनट बाद उसका दिमाग खराब हो गया, उसने फ़ोन काटा और ब्लॉक कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, थेरेपिस्ट ने मेरे को वो ब्लॉक कर दिया। एंटिटी के बारे में बोलने के बाद। नहीं, 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 वहाँ तक की बात ही नहीं पहुँची। मैं हम्म, बस प्रोसीजर पूछ रहा था। मतलब मैं पूछ रहा था कि कैसे करेंगे, ऑनलाइन होता है, नहीं होता है, फीस कितना है, कौन से दिन करेंगे, यही बात चल रही थी और हम्म, मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब ये पता है दूसरी बार हुआ, एक बार ये हुआ था कि मैं जैसे मेरा स्किन का प्रॉब्लम है, तो मैंने लेज़र वगैरह कराया बट ये वापस आ जा रहा है। तो मैं इस बार आयुर्वेद वाले के यहाँ पे गया था, तो वहाँ पे भी लेडी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा क्या है, क्योंकि मैंने ये लेज़र कराया है, इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ कि नहीं? तो वो चिढ़ने लग गई। चिढ़ के मारे उसने बोला कि यू आर नॉट रेडी फॉर द मेडिकेशन, सो आई थिंक यू शुड शुड नॉट इवन ट्राई इट। 15 मिनट में ऐसा हो गया कि मुझे भी फिर गुस्सा आ गया, मैं भी उठ के चला गया। तो मेरा मतलब ऐसा फेस पाल्म मूवमेंट हो गया कि मेरे को डॉक्टर ने रिजेक्ट किया, मेरे को थेरेपिस्ट ने रिजेक्ट किया, हीलर ने। मैंने ऐसा हम्म, कभी सुना नहीं लाइफ में। मैंने मतलब मैं पैसा दे रहा हूँ, ठीक है? हम्म। मेरे को हीलिंग चाहिए, ठीक है? तुम्हारे क्लाइंट्स बढ़ा रहा हूँ, मतलब सब कुछ मैं कर रहा हूँ और तुम मुझे हम्म। रिजेक्ट कर रहे हो। मतलब ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वो थेरेपिस्ट से तो ऑनलाइन फोन में बात किया था। वॉइस नहीं आ रहा। थेरेपिस्ट को फोन में बात किया था। हाँ, फ़ोन में बात किया था, डॉक्टर को पर्सनल जाके मिला था। फोन में भी इन्फ्लुएंस हो गई वो। ब्लॉक कर दिया मतलब। हम्म, और ये मेरे साथ बहुत होता है, जब बचपन से ही रिलेशनशिप का ऐसा रहता है ना। 10-10 साल में स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, ठीक है? उनको हाय बोलने पे मैं ब्लॉक हो रहा हूँ। आप समझ रहे हो? हाय बोला मैंने, मतलब आई कैन लिटरली शो यू। मैं किसी नॉर्मल इंसान को बताऊँगा ना, वो बोलेगा आई एम क्रेज़ी, बट if ऐसा it हुआ is है मेरे साथ। if it is your chosen contract or lessons, then it's okay. Maybe nature is taking care. If it is doing by this energy, then think of this entity's energy, the power. वही तो बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं किसी को एक पॉइंट ऐसा आया था, मतलब ये तो स्पिरिचुअलिटी में मैं अभी थोड़ा ये 2024 के मिड से थोड़ा मैं आना स्टार्ट हुआ हूँ। बट उसके पहले तो मैं डर में जीता था, पता है? मैंने Hmm. किसी लड़की को भी देख लिया ना, मतलब जैसे रास्ते में जाते हैं तो ऐसे देख लेते हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग। मतलब हो सकता है कुछ और होगा, बट एक नॉर्मल वे में इधर-उधर तो देखते ही हैं। मैं नीचे झुक के चलता था। Hmm. मैं काफ़ी सालों तक तो मैं एक्चुअली में नीचे झुक के चला हूँ कि आई कॉन्टैक्ट ना हो जाए, बिकॉज़ कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। मेरे को तो एक बार डर बैठ गया था मेरे मन में, कहीं पहुँच ना लग जाए, मैं किसी से बात कर लूँ तो। इट Hmm. वाज़ वेरी इर्रेशनल फ़ियर, बट वो बैठ गया था एक पॉइंट पे। Fear and phobias. ठीक है। तो नेक्स्ट वीक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक ही टाइम मिलेगा। सैटरडे वो ऐसे ही चलेगा, अब तो वो तो 6 डेज़ हो गया मेरा, 6 आवर्स हाँ, हो गया। ठीक है, चलने दो, तब तक तुम्हें भी कुछ चेंजेस पता भी चल सकता है। एक्चुअली ये एक वीक का थोड़ा हीलिंग टाइम ले ले तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है। हाँ, बेटर भी रहेगा। हुँ। क्योंकि जैसे हम देख रहे, तुम अलग अलग लाइफ्स में भी जा रहे हो, तो इट्स नॉट दैट यू हैव इश्यू फ्रॉम एनी वन लाइफ। Maybe you have some different multiple lives rooted to different issues. मे बी तो सेम इश्यू के लिए मल्टीपल थ्रेड्स। वो भी हो सकता है, अलग अलग इश्यूज को अलग अलग लाइफ से भी हो सकता है। क्योंकि एक बार तुम अलग लाइफ, अभी कितना 3 लाइफ देखा। अभी 2 देखा, एक जगह तो डेज़र्टेड हो गई थी। कुछ तो हम्म। भी स्टॉर्म आ रहा है, आई डोंट नो कौन-सा, ये क्या कोई मैसेज है क्या, रियल लाइफ का मैसेज है क्या? क्योंकि बट मेरे इधर कुछ कोल्ड फील हो रहा था ना तुम। यहाँ पे, हम्म। और वो वहाँ पे ऐसा था कि जैसे वो नहीं रहता, जैसे वो थैनोस वाली मूवी है ना, वैसे सब हो रहा था एंड इट वाज़ ग्रे कलर का, जैसे सीमेंट पूरा डस्ट की हम्म। फॉर्म में जाता है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लोजिंग था, मतलब व्हाट आई एम फीलिंग, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था ना तो गार्डन था, है ना? हम्म, तो जब मैं वापस आया तो ये पूरा, मतलब ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सभी हाँ, सब खत्म हो गया, बंद हो रहा है सब। बंद हो रहा है, हाँ, पोर्टल बंद हो रहा है जैसे मूवीज में होता है, उस टाइप से मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा। वो वाला चैप्टर खत्म हुआ है एक। और बाद में दूसरा लाइफ गया, फिर से गार्डन में गया तो। वो ऐसा था कि जैसे एक थ्री वे रहता ना, एक ऐसा फिर ऐसा, हम्म, तो मैं इधर देख रहा था एंड इट वाज ब्यूटीफुल, मतलब पहले वाला तो शेडी और वो डार्क इवनिंग टाइप था, यहाँ पे हम्म, सन वगैरह था, थोड़े फ्लावर्स थे, पेड़, यहाँ पे बहुत लंबे पेड़ थे, एंड बहुत बहुत अच्छा सीन था, बट वहां पे भी मैं स्टक हो गया। मैं इधर उधर इस तरफ उस तरफ नहीं हो पा रहा हूँ, मैं आगे भी नहीं देख पा रहा हूँ, सो आई कैन नॉट कनेक्ट, मतलब मैं वो स्टोरी, मैं जान नहीं पा रहा हूँ यहाँ की स्टोरी क्या है। इसीलिए मैं बंद किया, नहीं तो कुछ लोगों को ना कंटिन्यू होता है ऐसा। बहुत कम है ज्यादा लाइफ में कंटिन्यूटी मिलना। बहुत लोगों को एक या दो लाइफ में कुछ स्टोरीज निकलते हैं, बाद में वो अटक जाते हैं, स्टॉप हो जाता है। मे बी दे हैव टू टेक मोर सेशंस, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक लड़की को भी ऐसे ही बहुत सेशंस किया था। जब भी सेशन लेती है वो कोई ना कोई लाइफ जाती है। बाद में एक बार एक डिवाइन मास्टर्स ऐसे ही मीट हुआ तो उनसे पूछे हम, क्यों एक ही सेशन में सब कुछ पता नहीं चलता? जब भी हम पूछते हैं वो बोलती है हाँ उतना ही है। बाद में फिर से आती है, फिर से सेशन के तो और एक लाइफ जाती है। तो मास्टर से ये आंसर आया कि जब तुम्हें कितना पता चलना उतना ही चलेगा, ऐसा नहीं कि तुम चाहे तो सब कुछ जान लो एक ही बार। हम्म। इट्स ऑल इन देयर कंट्रोल, दे विल रिवील वेन एवर वी आर रेडी। इट्स नॉट दैट वी आर सीकिंग हेल्प तो कर देंगे। इफ वी आर रेडी देन ओनली दे विल हेल्प अस। आर्केंजल माइकल भी उतना आसानी से सभी लोगों को नहीं आता। And most of the cases I deal with like this attachments only. एंटिटीज ना। हाँ, जब कुछ लोगों को पता भी नहीं रहता, सेशन में आते हो, सेशन में बोलते मेरा ऐसा कुछ है इधर, मैं ऐसा फील हो रहा हूँ, तब ऐसे ही बात करके निकलना पड़ता है। बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आई एम डूइंग द सेशन। आई ऑलवेज फील एंड सरेंडर टू मास्टर, से दैट कोई आया है अभी तुम देख लो, मैं सिर्फ मीडियम जैसा इधर बैठता हूँ देखता हूँ, आप लोग हैंडल करो इसको। That's why even the entities will listen. It's हम्म। not my power, it's their power. Even when I do meditation, maybe those all things work. That's why these masters also come to help us. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट वीक जो था ना, क्योंकि वो उसका नीजर रिएक्शन होता है ना, कि जैसे हड़बड़ाहट होने लगती है, कि और वेज नहीं मिलते हैं, कि पहले तो बहुत कंफर्टेबली रह रही थी रूममेट बन के, Hmm. तो अब ऐसा शायद उसको फील हो रहा है कि मे बी समथिंग लाइक कि, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ मेडिटेशन वगैरह भी मैं करता हूँ, एंड कुछ ऐसा होता है कि अब बहुत टाइम नहीं बचा है, तो Hmm. आप देखो, मतलब मेरे को कैसा, आपने वो, आप वो एक बार मैसेज पढ़ो, वो मुझे एक मतलब दूसरे टीम के मैनेजर से आया, वो सीनियर, ही सेड कि वी हैव डिफाइंड द अप्रोच, प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट, अदरवाइज योर एक्टिविटी विल बी बैंड। मतलब ये Hmm. थ्रेटनिंग है। कि Hmm. जब मैं कल मेडिटेशन कर रहा था, जब ये फील वगैरह हुआ, तो ग्लास ऐसा रखा हुआ था और कैंडल ऐसा था, तो कैंडल ऐसा गिर गया और इसको जलाने लग गया। मतलब मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, Hmm. तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि कैंडल गिरा मेरा, क्योंकि वो पीछे नीचे भी मैं लगा के रखता हूँ, एंड जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुआ ये मैसेज आया मेरे को। Hmm. मतलब ये थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑब्वियसली इससे रिलेटेड ही लग रहा है मेरे को, Influence. इन्फ्लुएंस। Okay. ये क्योंकि ये सिंस बहुत टाइम से मुझे लगता है ये बचपन के इश्यूज कुछ कुछ भी इससे रिलेटेड है, मे बी देयर आर सम थ्रेड्स, एंड अब एनीवेज जैसे वो वाली बात होती है ना कि कुत्ता भी पाल लो, 6 महीने के लिए अटैचमेंट हो जाता है, Hmm. पास्ट लाइफ से कब से चला आ रहा है, इस लाइफ में भी बहुत सालों से है, तो ये तो बहुत, तो वो कितने साल से ऐसा ही है? उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था। Hmm.
मतलब इतना कंफर्टेबल हो गया था, मुझे रीज़न ही नहीं पता था। ये तो 1 डेढ़ साल से थोड़ा-मोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है मेरे को। और एक मैं ये सोच रहा था कितना साल हुआ रहेगा वो इंसिडेंट होके तुम्हारा हिसाब से अगर एक जज किया तो। वो इंडिया ही था, बट वहाँ पे विलेजेस थोड़े वेल्दी थे। तो मुझे अब मैं अगर मैं रैशनली सोचूँ तो हो सकता है कि ब्रिटिश कॉलोनाइज़ेशन के पहले वाला है। मुझे वैसा तो लगता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर? मतलब वो आने के भी पहले। अच्छा, तो 1800। इफ यू आर सेइंग 1800 तो कल मुझे एक नंबर आया दिमाग में 1860। ओके। रैंडम नंबर था कल मेडिटेशन के टाइम पे। आई डोंट नो क्या मीन करता है। कल एक दूसरा लेडी को सेशन किया तो उनका भी एक लाइफ देखी, वो भी 1855 कुछ बोली। 1860 या 1865 ऐसा कोई रैंडम नंबर बस मेरे को याद है। नाउ यू सेड ना 18 तो मैंने बोला कि मतलब आई डोंट नो क्या मीन तो करता है, शायद ये है शायद। अगर 1860 पकड़ो, 40 प्लस 125, 165 ईयर्स से ऐसे ही हो। बट 1865 में कंडीशन कैसी थी हमारी? 1865 इंडिया मतलब ठीक ठाक वेल्दी ही थे। कोई विलेज भी था ना, ये विलेजेस में तभी होता था। अगर ये रईस या अपर कैस्ट वाला से कोई ऐसा लोग युवा पेर हो गया तो उसको ऐसा इल ट्रीट करते थे ना। हो सकता है क्योंकि अमीर तो थे वहां पे लोग, मतलब ऑल्दो उनका वो पहनावा थोड़ा पगड़ी वगड़ी टाइप का था, बट वो गरीब तो नहीं लग रहे थे कहीं से। Maybe this girl belongs to some lower caste or poor family, मे बी so that's why they opposed and burnt or maybe forcefully they did it. शायद सती वगैरह हो, कुछ हो शायद। सती का टाइम में तो हस्बैंड जब मरने के बाद में उसको जलाते थे। बट मैं वहां पे था, मतलब वो एक सर्कल सा था, मतलब गांव जैसा था। एंड ठीक ठाक लोग थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, बट अच्छे खासे लोग थे कि एक कॉलोनी में जितने लोग रहते उतने लोग थे। बोल नहीं सकते तुम्हारे जैसे तुम बोला सती ये पद्धति था ना। आई डोंट नो, मतलब वो तो मैं अभी सोच रहा हूँ। हो सकता है वो भी एक रीजन। बट मे मैं बी वहां पे था। as not as a boyfriend, maybe some other supportive character maybe you are. मे बी मतलब या हो सकता है मैं थर्ड पर्सन से अब देखने गया हूँ। मे बी भाई था या कोई दूसरा कोई था जो सपोर्ट कर सकते थे। हाँ, वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुआ, क्लोज तो थी, रिलेशनशिप इज नॉट स्टैब्लिश्ड। maybe that anger was there with her. हम्म। मुझे अलग करा दिया, मुझे लाइफ जीने नहीं दिया। या मे बी फैमिली से निकाल दिया, तो तुम्हारी भी फैमिली नहीं बनेगी, इसलिए तो शादी के रिश्ते भी नहीं बन पा रहे। बहुत रीजन हो सकते, पॉसिबिलिटीज। मुझे लगता है मेडिटेशन में मुझे आंसर मिलते हैं जब। पकड़ना पड़ता है उसको। हाँ, जैसे कल वो 1865 मतलब वो आज मे बी कम्युनिकेट हुआ। जैसे आज आज की ही मेडिटेशन में बर्निंग स्मेल था, वो भी पिलर में, मतलब वो उसका रीजन पता चल गया। मे बी वो इंडिकेशन था आज बर्न हो जाएगा। हो सकता है, मतलब वो बर्न मैंने पहले सूंघा नहीं था, मतलब वो एक मतलब आई नो बर्न, मतलब शेवरमा भी जब वो करते कुकिंग कर, तो इतना तो समझता है। शायद उसका भी कुछ इंडिकेशन मिला था, मोस्टली मेरा टाइम भी हुआ है, हो सकता जाने का टाइम आ रहा है। हो सकता है, मतलब वो ऐसा कुछ सिंबॉलिक होगा कि वो बर्न कर देते तो आफ्टर लाइफ चले जाओ इस टाइप से मे बी। और जितना हम बोलते हैं ना, सजेशंस देते हैं, कन्विंस करते हैं, तो उनको भी थोड़ा वो जाएगा दिमाग में। हाँ सच है, मैं इतना साल से ऐसे ही भटक रहा हूँ, बेटर है मैं जाऊँ। ये सोल फैमिली हर बार हमको चांस मिलेगा फिर से आ सकते हैं। हम्म। तो कुछ लोग वो समझ जाते हैं, कुछ लोग समझ के भी थोड़ा देर नाटक करते हैं। मेरे को ये नौटंकी वाली लगती है,
इसको ये, क्योंकि ये बहुत अवेयर, मेरे को ऐसा फील हो रहा था बहुत अवेयर है। हम्म, ठीक है, कैसे भी हो गया। देखेंगे आगे। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक। या सैटरडे एक बार रिमाइंड करो टाइम।